डिलाइटफुल इवेंट मैनेजमेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज, जहां हर किस्म की सर्विसेज दस्तियाब हैं, जैसे कि फूड कैटरिंग, वेज एंड नॉन वेज, वेडिंग फूड, होम डिलीवरी सर्विस, वेटर सर्विस, डेकोरेशन, बर्थडे डेकोरेशन, होम हल्दी डेकोरेशन, स्टेज डेकोरेशन, कार डेकोरेशन, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, प्री वेडिंग एंड वेडिंग फोटोज एंड वीडियोज। इन तमाम सर्विसेज के लिए या इनमें से किसी भी सर्विस के लिए राब्ता कीजिए डिलाइटफुल इवेंट मैनेजमेंट एंड कैटरिंग सर्विस, IDSMT लेआउट, अपोजिट न्यू RD ऑफिस, IB रोड, रायचूर, या फिर फोन कीजिए 7406826398 पर। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। रायचूर जिले में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स के क़याम के लिए गुज़िश्ता 1017 दिनों से मुसलसल एहतजाज चल रहा है। रायचूर शहर के हाशमिया चौक के करीब गांधी मुजस्समे के सामने ये पंडाल लगाया गया है, जहां पर मुसलसल एहतजाज करते हुए मुतालबा किया जा रहा है कि रायचूर जिले में एम्स को मंजूर किया जाए। 1000 से ज्यादा दिन गुजरने के बावजूद हुकूमत ने अभी तक इस जानिब कोई ठोस इकदाम नहीं किया। इस एहतजाज की कई लोग तायद कर रहे हैं, कई तंजीमें तायद कर रही हैं। खास तौर पर आज SDPI NA सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने इस एहतजाज की जबरदस्त तायद की और मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द रायचूर में एम्स को कायम किया जाए। इस मौके पर SDPI कायदीन मतीन अंसारी, तौसीफ अहमद, शेख दाऊद, गौस मुहिउद्दीन, आसिफ मोहम्मद, सैयद इमरान, एशा मुर्शद जानुल खादरी, सरपोश, सैयद फरीदुद्दीन, सादिक बेग, रफीक, सैयद इरफान और दीगर कई कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर SDPI कायद अकबर हुसैन नागुंदी ने जबरदस्त खिताब किया। इनके अलावा एम्स के लिए जिद्दोजहद करने वाले डॉक्टर बसराज कलश, जॉन वेजली, नरसप्पा, मोहम्मद इसाक, MR बेरी, वेंकट रेड्डी, चित्रकार, वेंकटैया शेट्टी, होसपेटे और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಏಮ್ಸ್ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಗೆ ಇಂದಿನ 1017 ದಿನದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ SDPI ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ। ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ? We want, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕು, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬೇಕು, ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಬೇಕು, ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕು, ಯುವ ಜನರಿಗೂ ಬೇಕು, ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಬೇಕು, ಸರ್ವರಿಗೂ ಬೇಕು, ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದವರಿಗೂ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು। ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಏಮ್ಸ್ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಗೆ ಇಂದಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ SDPI ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ 1017 ದಿನದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ SDPI ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ We want, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲೇಬೇಕು। ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲೇಬೇಕು। ಯಾಕೆ ಏಮ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? 1956 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಫಸ್ಟ್ ಏಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ। ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬೇಕು। ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್। ಆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಬಡ ಜನರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು, ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ, ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಏಮ್ಸು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು 1926। ಅವತ್ತಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ
ಒಟ್ಟು 24 ಏಮ್ಸ್ಗೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಒಂದು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಕನಿಷ್ಠ 200 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಬೇಕು. ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. 200 ಎಕರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರ್ತವೆ. ಸುಮಾರು 19 ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ, ಒಂದೇ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್, ನ್ಯೂರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕಲ್, ಹಾರ್ಟ್, ಕಿಡ್ನಿ, ಲಿವರ್, ಮತ್ತೆ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗೈನಾಕ್, ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ? 200 ಎಕರ್ಸ್. ಇವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಂಥ ರಿಮ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಇಂಥ ರಿಮ್ಸ್ 100 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಸುಮಾರು 40,000 ಕೋಟಿ ಅದರ ಮೂಲ ಬಂಡವಾಳ. ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ? 40,000, 40,000 crore. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅವರು 12 ರಿಂದ 15,000 ಕೋಟಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೋಟಲ್ 5 year ಪ್ಲಾನ್. ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಡವರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ, ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟುವವರಿಗೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. आदाब नाज़रीन, A1 TV रायचूर उर्दू न्यूज़ में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई सालों से, जैसा कि 2013 और 14 में हमारे पास हैदराबाद कर्नाटक में ख़ास तौर पर रायचूर को IIT देने का वादा करे थे। यहाँ तक के अधिवेशन में पास भी हुआ था। उसके बावजूद भी रायचूर के साथ नाइंसाफ़ी की गई। मगर उस वक्त जब मैंने 2013 और 14 में देखा था कि बसवराज कलर साहब काफ़ी बड़े पैमाने पर एहतजाज किया, यहाँ तक के भूख हड़ताल भी की। कई लोग जो है ना सीरियस हो गए थे, उनको हॉस्पिटल में भी ले जाया गया था। उसके बावजूद भी हमारे रायचूर को नाइंसाफ़ी की गई और वो IIT धारवाड़ को चले गया। मगर उसके बाद कई साल गुजर जाने के बाद हमारे पास IIT के लिए जब आवाज़ उठाई गई तो हमारे रायचूर को फिर भी नाइंसाफ़ी की गई। मगर हमारे हैदराबाद कर्नाटक में ख़ास तौर पर रायचूर को क्यों नाइंसाफ़ी की गई है वो अल्लाह ही बेहतर जाने। मगर सबसे बड़ी कमज़ोरी मुझे ये महसूस होती है कि यहाँ के जो सियासतदान हैं, चाहे वो BJP के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, वो लोगों की बहुत बड़ी कमज़ोरी है। क्योंकि डेवलपमेंट के लिए पार्टी नहीं देखी जाती। ये लोग पार्टी में बट गए हैं। पार्टी में बटने की वजह से हमारे रायचूर की जो भी डेवलपमेंट से बड़े बड़े वो पीछे होते जा रहे हैं। मगर उसको मद्देनज़र रखते हुए बसवराज कलर साहब एम्स के लिए पिछले 3 साल यानी 1017 दिन से जो एहतजाज कर रहे हैं, इसमें सारे पार्टियां, सारे संघ, तमाम लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मगर मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि ये लोग वक्तिया तौर पे अपनी जो उंगली काट कर शहीदों में जो शुमार हो रहे हैं, ये मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। ये एहतजाज में रोज़ाना जो इस तरह जो एहतजाज है, इसी तरह रहना चाहिए, इसको गर्म करना चाहिए। जब जाकर मरकज़ी हुकूमत यानी सेंट्रल हुकूमत इस पर जो है ना कोई काम होगा। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि बसवराज कलर साहब, मैं आप लोग को पिछले 1 साल से देख रहा हूँ कि 3 साल से देख रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, कि यहाँ पे जो है ना वक्तिया तौर पे जो है ना पार्टियाँ आती हैं, जो संघ वाले आते हैं, एहतजाज करते हैं, 1 दिन में चले जाते हैं। मगर आप अपना एहतजाज कंटिन्यू रखें। मगर जो हमारे पास रायचूर के अंदर 2 मिनिस्टर है, जनरल बसवराज साहब और शरण प्रकाश पाटिल, ये लोग 2 होने के बावजूद भी हमारे पास एम्स नहीं आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबको सलाम। आपको तो अच्छी तरह से मालूम है, ये हमारे के फ्रीडम मिलने से बाद हमारा ये हैदराबाद कर्नाटका सब फील्ड में बहुत पीछे पड़े सो है। वो सियासत हो, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल बैकग्राउंड में। इसके वास्ते ये बहुत 30 साल लड़े बाद हमारे वैजनाथ पाटिल साहब इसको आर्टिकल 371J हैदराबाद कर्नाटक एक स्पेशल स्टेटस दे चुके हैं। ये प्रॉब्लम, यही मेन प्रॉब्लम है कि सेंट्रल पॉइंट इज़ पॉलिटिकल विल पावर नहीं है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
कोसो पार्टी भी होंदे वो कांग्रेस होंदे जनता दल होंदे बीजेपी होंदे कौन चुनाते वो एमएलए वो एमपी वो बेंगलुरु जाते दिल्ली जाते अपने लिए अपने लड़ते हो गए। रायचूर में एक अच्छा एजुकेशन के लिए कोई भी नहीं लड़े, अच्छा रोड्स के लिए कोई भी नहीं ले। आज तक 2 नदियां हैं, पानी नहीं है पीने तक। ये कितना बदकिस्मत है हमारा रायचूर लोगों का बोले तो। ऐसा हमारा पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स ये तरीक़ा से काम कर रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम उनका एक ही नहीं है, ये एक पॉलिटिकल विल पावर नहीं है। दूसरी जगह हमारा लोग आम लोगों में लड़ने का कहाँ ताकत है? हमारे पास क्या यूनिटी है? क्या कुछ भी नहीं है, हम लड़ते नहीं हैं। नहीं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पॉलिटिकल विल पावर नहीं होने की वजह से क्या पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है। दोनों का प्रॉब्लम है। इधर हमारे पास अवेयरनेस रहे तो, हमारे पास लड़ने का ताकत रहे तो। अब ये कौन सियासत में कौन है ये पॉलिटिशियंस का, ये इनका शर्ट पकड़ कर हम पूछ सकते थे। हमारे पास वो हिम्मत नहीं है। हमारा कभी भी गुलामी सियासत है हमारे पास, झुकने का, जो हुजूर बोलने का। ये पहले हम निज़ाम जमाने से क्या हमारा ब्लड में आ गए सो है, वो ही अब कंटिन्यू हो रहा। उन्होंने क्या सियासत वाले एमएलए एमपी वाले क्या तो थोड़ा काम दिए तो बस है, थोड़ा पैसे दिए तो बस है। वो कभी भी उनके घर के सामने 24 घंटे फिरने का, वहीं बैठने का। ये गुलामी सियासत, गुलामी एटीट्यूड हमारा मन कब से जब निकाल नहीं सकते, जब तक हम नहीं लड़ सकते, जब तक उन्हें होशियार भी नहीं हो सकते। इसलिए मैं प्रॉब्लम यह है कि 3 साल से हम एम्स के लिए लड़ रहे हैं। एक आईआईटी हमारे कहाँ से निकल गया, ये निकल गया बोले तो हम कितना हम हेजिटेशन करें तो भी धारवाड़ का एक क्या बोलते एक चीटिंग, एक धोखाबाजी से उन्हें उधर ले गए। हमारे को फिर भी हमारे को होशियार नहीं हो गए। अब ये टाइम हम होशियार हो गए, हम एम्स दिए तक हम ये होराट ये स्ट्रगल नहीं छोड़ेंगे, जान देंगे। हम एम्स नहीं छोड़ेंगे। ये धारवाड़ लोगों को, एंटायर कर्नाटक लोगों को हम बोलते हैं अब हम होशियार हो गए, हम एक हो गए। आज एसडीपी पार्टी और सब पार्टी वाले हमारे को एक ताकत दिए है सो है, हमारे को एक इंस्पिरेशन दिए सो है। अकबर साहब नागुंडी के आज उनका एक लीडरशिप से आज बहुत बड़ा इससे हमारा एक जुलूस निकाले, हमारा ये स्टेशन को बहुत तरीके से सपोर्ट दिए सो है। हम आज नहीं तो कल हम श्योरली डेफिनेटली वी विल गेट एम्स। नहीं तो आज का 1017 दिन हो गया सो है, मगर हम नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली को जाते हैं नेक्स्ट मंथ, उधर भी हम प्लान कर रहे हैं। सब एंटायर रायचूर डिस्ट्रिक्ट के सब धर्म गुरु लोग, मुसलमान गुरु होंगे, वो हिंदू गुरु होंगे और क्रिश्चियन गुरु होंगे, सब गुरु के नेतृत्व से हम बहुत बड़ा वहाँ लड़ाई करते, जंग करते, हम एम्स लेते। नरेंद्र मोदी के साहब ये बोलते हैं ये हमारा पिछड़े हुए इलाका है, आईआईटी हमारे हाथ से निकल को गए सो है और स्पेशल स्टेटस है। लास्ट क्या है, एक एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट है। बाबा तुम केंद्र सरकार तुम दिए टाइटल, हम नहीं दिए। बहुत बैकवर्ड, टू बैकवर्ड है, बहुत पीछे है, ये गरीबी जिला है बोल को इसको विशेष स्थानमान, विशेष महत्वाकांक्षी जिला बोल को तुम टाइटल दिए। और टाइटल देखो आपको 6 साल हो गया। ये महत्वाकांक्षी का एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ग्रांट्स आया है क्या, एक विशेष अनुदान आया नहीं आया, एक विशेष कुछ तो इंस्टीट्यूशन डाले, कुछ भी स्थापन नहीं किए। इसलिए हम आखिरी बार तुम्हारे को हम रिक्वेस्ट करते हैं, तुम यहाँ रायचूर बहुत पिछड़े हुए सो मरीज लोग ज़्यादा है, इधर कैसा कीड़े मकोड़ों के सर का लोग मर रहे, इधर कुछ हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। इतना हेल्थ कॉस्टली हो गया, गरीब लोगों को हार्ट अटैक होंगे, किडनी लीवर और क्या कुछ ब्रेन ट्यूमर कैंसर हो गए तो इधर रायचूर में ट्रीटमेंट नहीं है। हम बेंगलुरु जाना, हैदराबाद जाना, मुंबई जाना, इधर हमारे गरीब लोग जा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं जा सकते। क्यों बोले तो हमारे गरीब लोग बहुत गरीब है, उनके खाना का कपड़ा मकान के लिए तरस रहे, लड़ रहे ज़िंदगी में, हर मिनट लड़ रहे। इसमें ये प्रॉब्लम हेल्थ का प्रॉब्लम हो गया तो कैसा उन जीना। ये इसलिए हम नरेंद्र मोदी के साथ इतना बोल रहे हैं। आप मन की बात रेडियो में बहुत बात करते हैं, ये हमारा मन की दुख की बात तुम कहीं नहीं सुन रहे। ये तुम सुनना, हमारा पिछले ये इलाका को, रायचूर को, ये हैदराबाद कर्नाटक को तुम एम्स देना ही पड़ेगा। जब तक ये जंग नहीं ठहरेगा, जान देंगे, एम्स नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको एक और सवाल पूछना चाहता हूँ बसराज कलश साहब
कि हैदराबाद जैसा कि हैदराबाद कर्नाटक में जो भी डेवलपमेंट्स के बड़े बड़े काम होते हैं, हैदराबाद कर्नाटक बोले तो गुलबर्गा बोले तो हैदराबाद कर्नाटक। क्या रायचूर में हैदराबाद कर्नाटक में क्या गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट एक ही है कि हर जो मतलब डेवलपमेंट्स के काम वहाँ पे एक ही हो रहे? और जो एम्स का पिछले 1017 दिन से जो आपका एहतजाज चल रहा है, इसमें ना ही यादगीर के कोई लीडर्स नज़र आ रहे हैं, ना रायचूर डिस्ट्रिक्ट के कोई एमएलए नज़र आ रहे हैं, ना ही गुलबर्गा के नज़र आ रहे हैं, ना ही बल्लारी के नज़र आ रहे हैं, ना ही कोप्पल के नज़र आ रहे हैं। क्या ये तमाम लोगों का काम नहीं है कि इस एम्स के लिए लड़ना? अगर एम्स आया तो सारे हैदराबाद कर्नाटक को उसका फ़ायदा है, ये लोग क्यों इसमें शामिल नहीं हो रहे? नहीं, तुम एक सवाल क्या पूछो, ठीक है। मैं आज तक रायचूर के प्रॉब्लम को कलबुर्गी वाले नहीं सुन रहे थे। ये हैदराबाद कर्नाटक बोले तो कलबुर्गी वाले का डोमिनेट चलता था हर इसमें, वो रेलवे होंदे, एग्रीकल्चर सेक्टर होंदे। अरे इधर काटन हम ये करते, उधर मेगा टेक्सटाइल पार्क उधर ग्रांट्स करे। इधर IIT की ये जंग चले तो उनको सपोर्ट नहीं मिला। क्यों बोले तो उधर वीरेंद्र पाटिल साहब, खरगे साहब, धर्म सिंह साहब, ऐसे बड़े बड़े एक पॉलिटिशियंस, बहुत पावरफुल पॉलिटिशियंस कलबुर्गी का डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ किया है। मगर उन कभी भी खरगे साहब रायचूर के लिए, रायचूर डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ भी नहीं करे। मगर ये टाइम एम्स क्या जंग चल रहा, पहला मर्तबा इतिहास में कलबुर्गी वाले, वहाँ के होराट लोग वाले इधर सपोर्ट करे, बीदर वाले हमारे रायचूर को सपोर्ट करे, बल्लारी वाले और यादगिरी वाले, होसपेट वाले, कोप्पड़ वाले, सब एंटायर कल्याण कर्नाटक का 60 डिस्ट्रिक्ट का सब भी वो ये स्टेशन करने वाले ऑल पार्टी लोग हमारे को सपोर्ट किए। सो है परसों 1000 दिन का हम स्टेशन करें फरवरी 5 तारीख को। वहाँ से हमारा हैदराबाद कर्नाटक होराट समिति का अध्यक्ष लक्ष्मण दस्ती साहब आ गए थे, और शरणबसप्पा वो बहुत बड़ा संस्थान है, उनका एडमिनिस्ट्रेटर बसवराज देशमुख आ गए, और प्रोफेसर RK उडगी आ गए, बीदर से आ गए, कलबुर्गी से, और ये बल्लारी से सोब पन्नाराज साहब आ गए, कोप्पड़ से आ गए, यादगिरी से, सब डिस्ट्रिक्ट को ये वेदिके में आकर हमारे को सब तरीक़ा से सपोर्ट दिए। सो है हम कभी भी कलबुर्गी वाले हम डिमांड नहीं करते एम्स ना हमारे को नहीं होना चाहिए, वो एम्स रायचूर कुछ होना बोल को हमारे साथ उन्होंने है, अभी भी है, सामने भी रहे तुम बोल को उन्होंने वादा किए। सो है ये अब थोड़ा बदल हो गया। ऑल हैदराबाद कर्नाटक लोग हम एम्स रायचूर के लिए एक हो गए। तो आप देख रहे थे कि बसराज कड़स साहब ने काफ़ी चीज़ें बताई, काफ़ी चीज़ों का मैं सवाल भी किया, उसका खुलासा भी किए हैं। ये अच्छी बात है कि तमाम हैदराबाद कर्नाटक के तमाम सियासतदान हो, चाहे वो समिति के लोग हो, तमाम एक होकर रायचूर को एम्स के लिए जो एहतजाज कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मरकज़ी हुकूमत से कि आने वाले दिनों में हमारे रायचूर को एम्स का जो मामला है, जो एम्स के लिए जो एहतजाज बैठे हैं, उसको मंजूर कराएं। मैं इतना कहते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, थैंक यू। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज एम्स के 1017 दिन होने के बाद कई तंजीमें, कई सियासी पार्टियाँ यहाँ एम्स के जो स्टेज है, जो महात्मा गांधी स्टेडियम के पास जो महात्मा गांधी के जो स्टैचू है, वहाँ पे जो है ना लगा हुआ है, ये जो पंडाल लगा हुआ है, यहाँ पे तमाम पार्टियां के लोग आ रहे हैं, तमाम सियासी लोग आ रहे हैं। आज मेरे सामने SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के स्टेट मेंबर अकबर नागुंडी साहब मेरे सामने मौजूद है। मैं आज उन्हीं से बात करता हूँ कि जो एम्स का जो मामला है, 1017 दिन होने के बावजूद इसको डिले होने की वजह, सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, जो केंद्र सरकार की नाकामयाबी है, उन्होंने जिस तरीके से पिछले दफ़े यहाँ के सांसद जो राजा अमरेश नायक जो थे, उन्होंने काफ़ी टाइम हमारे को दिलासा दिए थे, आके यहाँ का मेमोरेंडम कई मरतबा वो ले चुके हैं, ताकि मैं ये आपका लेटर वहाँ पहुँचाऊँगा, बात रखूँगा, बात करूँगा। क्या ये हमारे जो हैदराबाद कर्नाटक या कल्याण कर्नाटक, जिसको ये लोगों ने हमको नाम दिया है कल्याण बोल के, सिर्फ हमको नाम में खुश करने वाले, जैसा
मुंबई कर्नाटक के बीजेपी के लीडर्स जो थे, वो लोगों ने अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हुए जो आईआईटी थी वहाँ पे वो लोग चील की तरह ले गए। क्या वहाँ की अवाम वोट डालने पर वो सांसद बन के जाते हैं? यहाँ के वोट डालने पर वो क्या नीचे दर्जे के सांसद बनते हैं? क्या इनको मसावी हिस्सा नहीं है इनका? क्या इनका मसावी हिस्सा नहीं है? क्या ये पार्लियामेंट मेंबर नहीं कहलाते? क्या इनमें वो ताकत और सलाहियत नहीं है? और यहाँ के मौजूदा विधायक जो हैं, जिनको एमएलए साहब कहा जाता है, वो तीसरी मर्तबा पार्टी बदल के भी वो आज एक एमएलए बन चुके हैं। वो पेशे से एक डॉक्टर है, यहाँ की हालात को बखूब जानते हैं। वो यहाँ की हालात को बखूब जानते हैं। वो सिर्फ ड्रेनेज और रोडां बनवानों में मैं बादशाह कहला लेते हैं, अपने आप में मैं बादशाह बोल के अपने आप में बोल लेते हैं। क्या ये एम्स उनकी बादशाहत की हिस्से में नहीं आता? क्या एम्स उनको वो जो हेल्थ के बारे में जो उनका पेशा ही वो है डॉक्टर, वो बाद में एमएलए बन चुके हैं। वो पहले से पेशे से तो डॉक्टर बन के आए, बाद में एमएलए बने हैं। क्या उनको ये चीज़ नज़र नहीं आई कहीं कि यहाँ एम्स की ज़रूरत है? एम्स के बारे में कितने मर्तबा यहाँ से वो डेलीगेशन ले गए हुए हैं दिल्ली को, और कितने मर्तबा पार्लियामेंट्री ऑफ मेंबर को बात कर चुके हैं, कितनी मर्तबा सेंट्रल मिनिस्टर को बात कर चुके हैं, यहाँ के सांसद कितनी मर्तबा बात कर चुके हैं। अगर बात भी करे हैं तो क्या ये बातों में ही मुनासिब रखते हैं? क्यों नहीं? आप में कमी क्या है? नहीं, मैं समझता हूँ साहब कि सबसे बड़ी कमी, जैसा कि आपने बताया कि धारवाड़ को जो है ना प्रहलाद जोशी साहब आईआईटी को लेकर गए। मैं धारवाड़ जितने भी अतराफ के जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, चाहे वो एमएलए हो चाहे एमपी हो, उन लोगों में इत्तेहाद है। मगर हैदराबाद कर्नाटक के जो पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो एमपी हो चाहे एमएलए हो, इन लोगों में इत्तेहाद नहीं है। वो अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करके आईआईटी को लेकर गए हैं। इसी तरह अगर हमारे पास भी अगर इत्तेहाद नहीं है तो आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता। हमारे पास पॉलिटिशियन का इत्तेहाद नहीं है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, इत्तेहाद अपनी जगह है। ये जो है एम्स, ना तो डॉक्टर शिवराज पाटिल साहब के घर आने वाला, ना तो हमारे सांसद साहब के घर जाने वाला। ये रायचूर के लिए तकरीबन यहाँ से 150-200 किलोमीटर की सराउंडिंग के एरिया में ये यहाँ की अवाम को काम आने वाला एक बड़ा इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे जितने सबके बच्चे, आपके बच्चे जहाँ बाहर जाके पढ़ रहे हैं वो भी बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, गरीब किसान का बच्चा पढ़ेगा, ऑटो रिक्शा वाले का बच्चा पढ़ेगा, ड्राइवर का बच्चा पढ़ेगा, पुलिस वालों का बच्चा पढ़ेगा। आज यहाँ पे पढ़ाई के लिए हमको सिर्फ हमारा ज़िला इस्तेमाल के लिए बिजली का इस्तेमाल हो रहा है, चावल का इस्तेमाल हो रहा है, सोने का इस्तेमाल हो रहा है, रेती का इस्तेमाल हो रहा है, जल का इस्तेमाल हो रहा है, जंगल का इस्तेमाल हो रहा है, ज़मीन का इस्तेमाल हो रहा है। ये इस्तेमाल सिर्फ आपके पॉलिटिकल कैरियरों के लिए महदूद रख रहे हैं क्या? ये आपके पॉलिटिकल कैरियर के लिए महदूद रखते हुए आप अपने आना को दूर रखते हुए आप एक मुत्तहिद हो के हमारे ज़िले को एम लाइए। जैसा कि गुलबर्गा में आप 1000 फीट अगर बोर भी डालेंगे तो वहाँ पे पानी नहीं मिलता। वो बंडे हैं, सिर्फ बंडे। वो बंडे के अंदर गर्मी से लीडर पैदा हो रहे, उनके पास इत्तेहाद है, वो लोग वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। तोर की दाल के अलावा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। बावजूद भी गुलबर्गा की इतनी तरक्की क्यों? वो लीडरों में कैपेबल है, वो लीडर कैपेसिटी वाले लीडर हैं। वो कैपेबल रखते हैं कि सबको इत्तेहाद पैदा करे और सबको लेके चले। यहाँ पे ये लोगों की कमज़ोरी ये है कि एक दूसरे के साथ मिलना नहीं चाहते, रायचूर को डेवलप करना नहीं चाहते। ये सिर्फ सेल्फ डेवलपमेंट का सोचते हैं। ये खुद अपने आप में एक लीडर की शक्ल बनाते हैं, ना ही तो अवाम का कोई नुमाइंदा, कोई लीडर आज तक रायचूर में ना ही आया। आता है तो अल्लाह बेहतर फरिश्ते की तरह भेजेगा। हम उम्मीद है कि हम बोले हैं ना, हम अपना खून बहाएंगे लेकिन एम्स नहीं छोड़ेंगे। ये एम्स का एक स्लोगन है और ये हकीकत भी है कि यहाँ पे जितने लोग
काफ़ी दिनों से सीनियर सिटीजन्स, उनका खून पसीना जो धूप में है ना पिघलता है चर्बी के माफिक, उस तरीके से ये लोग बैठ रहे हैं। कम से कम आप लोगों को ये चीज़ पे दिलचस्पी लेना चाहिए, ये सोचना भी चाहिए कि आप यहाँ की हालात को गौर व फिक्र करते हुए मैं मुतालबा करता हूँ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से, नहीं तो हम लोग आपके घरों पे आके एहतजाज करेंगे। हम ये होराटा समिति को लेके यहाँ के एमपी के घर पे, यहाँ के एमएलए के घर पे पिछले भी बसवराज खड़सा जी ये काम करे थे। अब इस दफ़े वैसा नहीं करेंगे, हम सराउंडिंग आपको बाहर जाने नहीं देंगे इंशाल्लाह। अगर इस दफ़े ये आप असेंबली में, अगर वहाँ पे सांसद में अगर इस दफ़े नहीं बात करेंगे तो इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में आपके घरों पे हम मुत्की डालेंगे, बंद करेंगे। आपके घर आएंगे हम लोग, आपसे मुतालबा करेंगे, आपसे पूछेंगे कि आप में कैपेसिटी नहीं है तो इस्तीफ़ा दे दीजिए। आप में अगर ये कैपेसिटी नहीं है लाने की तो इस्तीफ़ा। लोगों के साथ जुल्म करते हुए लोगों के साथ खिलवाड़ मत करिए। इतने दिन आपने हमारे साथ खेला है, आँख मुछली खेला है, हमने सही लिया है। इंशाल्लाह आगे हम नहीं सहेंगे, ये हम मुतालबा करते हैं दोबारा यहाँ के एमएलए और एमपी से। पूरे 7 एमएलए, एक एमएलए नहीं है, पूरे कोई भी पार्टी का क्यों ना हो, तो हमको कोई पार्टियों से लेना देना नहीं है, हमको एम्स से लेना देना है। हमको एम्स चाहिए तो चाहिए, हमको एम्स ला के दो। आप में अगर कैपेसिटी है, आप वोट ऐसा ही नहीं डाल लिए, आपको बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दे के लोग वोट डाले हैं, बहुत जद्दोजहद के साथ वोट डाले हैं। मैं रिपीट आपको फिर मुतालबा करता हूँ यहाँ के एमपी और एमएलए से कि भाई आप लोग इस पर तवज्जो दे के काम करिए, वरना इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में हम आपके डेलीस में आके बैठना पड़ेगा ताकि हमको एम्स ला के दो। आपके साथ हम लोग वहाँ चलेंगे, आप लेके जाएंगे या हमको मार के जाएंगे वो आप ही जानते हैं। वो आप पे छोड़े हुए आप एम्स लाना, हमारा ये मुतालबा है। मैं अकबर हुसैन नागुंडी, स्टेट वर्किंग कमेटी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। जय हिंद, जय भीम।